Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. In this lecture, we are going to discuss about email. So first of all, we are going to discuss when we should write an email. Then we will discuss the basic terminologies associated with it. Then we'll discuss what all we should write in an email. And then finally we discuss before sending an email, what all things we need to consider. ओके सो इस लेक्चर में हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि ईमेल क्या होता है और ईमेल कब लिखना चाहिए हमें और उससे बेसिक रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या है उसको हम देखेंगे। उसके बाद में हम किसी भी सेंडर को सेंड करने से पहले ईमेल में क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ईमेल क्यों लिखेंगे। तो बेसिक रीजन क्या हो सकता है कि जब भी आपको कोई सिंपल इंफॉर्मेशन कन्वे करनी हो, जैसे कि यू आर ऑर्गेनाइजिंग सम पार्टी और यू आर ऑर्गेनाइजिंग सम इवेंट and you have to invite more than 100 participants, so it is absurd, यानी कि हर एक बंदे को अगर आप कॉल करोगे it will take a lot of time. Instead of that you can easily drop a email. So for a simple information you need not call each and every person. Okay, that will be a utter waste of time. So that's why we need to consider email when we are conveying some simple information. Secondly, if your company has branches all over the world or all across the globe, okay, अगर आपकी कंपनी के ब्रांचेस वर्ल्ड में हर जगह है तो आपको अपना ईमेल ड्रॉप करना है किसी ऐसे पर्सन को जो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में रह रहा हो, यानी कि दूसरे कंट्री में रह रहा हो। तो देयर कैन बी डिफरेंस इन द टाइम जोन्स. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन द टाइम जोन्स, ईमेल इज द बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव. ओके, देन द थर्ड रीजन कुड बी कि suppose you are working late at night and you want to convey a very simple information, so you won't call that person in late night, right? So instead of calling, you can just email and just drop a message that you have given a email. Okay, so that the person when he or she wakes up, they will read your email. Okay, now another case could be when you are calling a person and he or she, instead of taking the information, they are taking around, apart from taking the information, they are taking around 1 to 2 hours as they are very much talkative. So to avoid talkative person, it is better to give them information via email. Okay, because time is in corporate world is money. So we can write this in points as when we have a very simple information to convey to lots of people, then we use email. Now suppose your company wants to send messages across the globe for a particular event or for different time zone, then we use email. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी हमें कोई सिंपल इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है बहुत सारे लोगों को, तो उसके लिए मैं ईमेल यूज कर सकता हूं। और जब भी मुझे डिफरेंट टाइम जोन पे लोगों तक मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव क्या है, ईमेल है. Suppose you are working late at night and you want to drop a critical information to your boss, colleague, then the use of email may be done. Okay. Now, suppose you want to call a person for conveying some information and the person takes more than the expected time. ठीक है, आपने किसी भी person को कॉल किया और उसने expected time से ज्यादा टाइम ले रहा है, then also email can be used. Now we'll learn the basic terminologies associated with email and try to understand it. So first of all, let us try to understand these two terms, BCCing and CCing. BCCing means blind courtesy copying. That means copying in another reader in a way that hides the copied person presence from the recipient's view. And CCing is courtesy copying, including another reader in the email exchange in a way that let the recipient see what the person is included. So, इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कोर्टसी कॉपिंग. इसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम ब्लाइंड कोर्टसी कॉपिंग में डालते हैं, ठीक है, और बाकी लोगों का नाम अगर आप सीसी में डाल देते हैं या फिर ईमेल टू सेंडर 2 में भी डाल देते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जब आप ईमेल भेजते हो, ठीक है, सो एक्सेप्ट फॉर द बीसीसी 1, देखो जैसे आप ईमेल भेजते हो तो आपके ऊपर एड्रेस आते हैं, ठीक है, ये ईमेल किन किन लोगों को भेजा गया है, उनके नाम आते हैं. तो जिन सेंडर्स के पास में ये ईमेल भेजा गया है, ठीक है, ऑल ऑफ द सेंडर्स, ओके, दे विल नॉट बी एबल टू सी द पर्सन्स नेम whoever has been put in
बीसीसी, जिसका नाम भी बीसीसी में पुट किया गया है उसको वो देख नहीं पाएंगे। इसको मैं अभी प्रैक्टिकली एग्जांपल से दिखाऊंगा। लेकिन सीसिंग में क्या होता है, कोर्टेसी कॉपिंग में आप सबके नाम देख सकते हो। सो लेट अस ट्राई टू सी प्रैक्टिकली हाउ इट वर्क्स। सो लेट अस सपोज आई एम कंपोजिंग एन ईमेल। सो लेट अस सपोज मैं अपने आपको एक ईमेल दे देता हूं, rjsh10391@gmail.com. Okay, so this is the first sender, primary sender, let us say. Now let us suppose I give mitrc c@gmail.com as a cc, or you can say mitrc@g@gmail.com. Okay, now I will write bcc is mitrc_, let us suppose eba@gmail.com. Okay, let me put the subject as test email. Okay, now hi there, welcome to lecture of technical communication. Thanks and regards. Okay, so I have sent this message. So now let's check. Okay, let me open this. So let me open the Gmail. MITRC अलवर सी को सेंड किया था, है ना। सो हमारे पास में ये एक टेस्ट ईमेल आ गया, है ना, टेस्ट ईमेल आ गया। अब यहां देखो, आप यहां पे हमने, आपको याद होगा हमने बीसीसी में किसको डाला था, MITRC अलवर ए को डाला था। लेकिन देखो यहां पे कहीं पे भी MITRC अलवर ए दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। वहीं पे अगर आप चेक करें कि MITRC अलवर ए के पास में मैसेज गया है या नहीं गया है, लेट मी चेक दैट, उससे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेल तो यहां पे आया है। ठीक है, यहां पे मेरे को सबके सीसी वालों के सबके नाम दिखा रहा है और मेरे पास में मेल भी आया है। लेकिन वहीं पे अगर मैं सी या डी में देखूं तो मुझे MITRC अलवर ए का नाम नहीं दिखाई दे रहा, है ना। लेट अस सपोज हम लोग इसका डी का और देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे भी आ गया। ओके, बट यू कैन नॉट सी MITRC अलवर ए। So this is what BCC is. That means you want to convey some information. Okay, you want to convey some information. आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, लेकिन आप ये नहीं बताना चाहते कि किसी तीसरे पर्सन के पास भी वो इंफॉर्मेशन गई है, उसको आपको हाइड करना है, उस पर्सन का नेम हाइड करना है, तो आप बीसीसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी भी पर्सन के नेम को हाइड करने की जरूरत नहीं है, तो हमें बीसीसी में किसी को डालने की जरूरत नहीं है, सबको हम सीसी में डाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लाइंड कोर्टेसी कॉपिंग एंड कोर्टेसी कॉपिंग। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट, ईमेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कंटेंट का, कि बेसिकली ये कंटेंट क्या कहता है कि ईमेल क्यों भेजा जा रहा है और जिसके पास भी वो ईमेल जाएगा उसको क्या एक्शन परफॉर्म करने होंगे। दैट विल बी क्लियरली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कंटेंट। सो कंटेंट टेल्स द रीडर specifically and concisely why the email is being sent and what is required of him or her. Next is forwarding. Okay, forwarding means आपको किसी ने email किया and you are sending this to a third party. So resending an existing email to a new third party is forwarding. Then we need to take care about the purpose of the email. Basically, for what reason you have written the email.
Okay, so the reason for sending an email which should guide the content. Then you should also watch tone. Okay, लिखते वक्त भी आप टोन का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि आप एक्सक्लेमेटरी साइंस का यूज कर सकते हो, कैपिटल वर्ड्स का यूज कर सकते हो. बेसिकली वो एक टोन बताएगा. वो टोन कैसी हो सकती है? इट कैन शो हाउ द कंटेंट of an email conveys emotions and moods like sincerity, sarcasm, concern और human. तो exclamatory signs से और capital words से आप इसको कर सकते हो. ठीक है. Now, while writing an email क्या क्या चीजें मुझे कंसिडर करनी चाहिए? सबसे पहले हमेशा मुझे I have to start with a friendly greeting and the person's name. So suppose some person name is dear, let us say Kumar. Okay. Either you can use dear, either you can use respected. Okay, so it is very much fine. Okay, so first we have to start with a friendly greeting followed by the person name. Then we have to keep it as brief as possible. Okay, email कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे हम जो इसको हमें बहुत बड़ा करना है. हमें इतना लिखना है जितना जिससे कि इंफॉर्मेशन इजिली कन्वे हो जाए, सामने वाले को समझ में आ जाए. So keep it as brief as possible. Use bullet points to point out the important points. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बड़ा आपका जा भी रहा है ईमेल तो उसमें जो बुलेट पॉइंट्स हैं, ओके, जो बहुत ही जरूरी है रीडर को पढ़ने के लिए, है ना, जो एक्शन उसको लेने हैं, तुरंत एक्शन लेना होगा ना ईमेल को देख के, तो उनको बुलेट पॉइंट्स में रखो. तो यूज बुलेट पॉइंट्स टू पॉइंट आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट. कंसीडर द सब्जेक्ट लाइन टू द समथिंग मोर अप्रोप्रिएट. और सब्जेक्ट को बहुत ही अप्रोप्रिएट रखो, अदरवाइज आपका ईमेल जो है वो कोई पढ़ेगा नहीं. क्योंकि देर आर thousands and thousands of emails that are coming. Okay, अगर आपका सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं है, no one will read your email because subject will show how much important is your email. And one more tip is that when you are giving an email, try to send an email at a time of around 8 to 9 a.m. और 4 to 5 p.m. बेसिकली वो टाइम जब हम ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस को लीव करते हैं. यूजुअली ये दो टाइम पे ईमेल जो है ज्यादा चेक होने के चांसेस होते हैं और जो भी पर्सन आपका रहेगा वो सबसे पहले आपका ईमेल पढ़ेगा. लेकिन अगर आपने बहुत अलग ही टाइम पे दिया है और टाइम पे जब कोई ईमेल नहीं पढ़ता तो उस ईमेल का यूजुअली कोई फायदा नहीं होता. सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ईमेल भेज रहे हो या तो आप ऑफिस के लीव करने के टाइम पे ईमेल भेजो या फिर आप एंटर करने के टाइम पे ईमेल भेजो. दैट तो उसकी जो रीडेबिलिटी है, उसकी जो चांसेस है, दैट विल इंक्रीज. ऑलवेज ऑब्जर्व. और हमेशा मुझे ये ऑब्जर्व करते रहना है कि मैंने रिप्लाई किसी एक पर्सन को करना है या रिप्लाई टू ऑल करना है. जैसे कि आपने 100 पार्टिसिपेंट्स को कुछ इंफॉर्मेशन भेज दी, ठीक है, और उसमें से कोई एक 100 पार्टिसिपेंट आपको कुछ रिप्लाई करना चाहता है, तो ही हैज टू टेक केयर कि वो रिप्लाई आपको ही कर रहा है, ना कि रिप्लाई ऑल कर रहा है. क्योंकि रिप्लाई ऑल करेगा तो जो पर्सनल बात वो आपको कहना चाहता था वो सबके पास में चली जाएगी. So we have to always observe whether you want to reply to a single person, then use only reply, otherwise use reply to all. ठीक है. और कोई भी ईमेल सेंड करने से, क्योंकि एक बार ईमेल सेंड हो गया तो उसके बाद में उसको वापस तो नहीं जा सकता. तो ईमेल सेंड करने से पहले मुझे एकदम अच्छे से उसको रिवाइव करना होगा कि मैंने किसको ईमेल भेजा है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सेंडर है उसका जो एड्रेस है वो मैंने करेक्टली लिखा है या नहीं लिखा. क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन क्रिटिकल हो और गलत सेंडर को चली जाए तो it can be very harmful for the corporate or company, anyone. Okay, then we have to look for mistakes, whatever the mistakes are there. Okay, subject सही से लिखा है या नहीं लिखा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या क्या है वो मुझे देखनी चाहिए. उसके बाद में मुझे ये देखना चाहिए कि ईमेल ऐसा तो नहीं कि एकदम से रूड ईमेल हो रहा हो या एकदम से सॉफ्ट ईमेल हो रहा हो. उसको न्यूट्रल रखना है मुझे. ठीक है, उसका जो टोन होना चाहिए उसको एकदम न्यूट्रल रखना है. एंड अगर मैं कोई भी अटैचमेंट उसमें अटैच कर रहा हूं, आई हैव टू चेक फॉर दैट अटैचमेंट. सो बिफोर सेंडिंग एन ईमेल, कीप दीज थिंग्स इन माइंड. दैट इज रिव्यूइंग, लुकिंग फॉर मिस्टेक्स, ensure that email is neutral, and check for attachment. Okay, for this lecture this much is there. Okay, from next lecture onwards we are going to study about resume. Thank you very much.